Good morning, students. I am going to discuss uses of past perfect tense. In case of past perfect tense, we use had as helping verb, either the subject is singular or plural. We use third form of verb after had, subject, had, V3 object. If we want to change it into negative, place not between helping verb had and third form of main verb. If we want to change it interrogative, interchange the position of had and subject and put a mark of interrogation at the end of the sentence. In this way, this is the structure of past perfect tense. Past use of past perfect tense is very important in English grammar. We use this tense to describe an action completed before a definite point of time in the past. इसके लिए आवश्यक है कि एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए. इफ द एक्शन इज कंप्लीटेड, यहां से शुरू हुआ पास्ट से, यहीं पास्ट में इस डेफिनेट पॉइंट से पहले कंप्लीट भी हो गया, उस एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. वी यूज दिस टेंस लाइक, लेट अस टेक सम एग्जांपल. आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क बिफोर 6 p.m. दिस इज a definite point of time, and if someone had completed his work or his action before this definite point of time in the past, we shall use past perfect tense to express such an action. Next example, I had my lunch before noon. Before noon, this is a definite point of time which is given at the end of the sentence. Now, I had my lunch before noon. Is there something wrong? I have written had twice. Is there something wrong? No, nothing is wrong. It's absolutely right. How? I have used this had as a helping verb, which is used for past perfect tense. And this had is the V3 of have, means take. Here, this had is used as main verb, and this has is used as a helping verb. I had means I had taken my lunch before noon. Next, which is a very important type of past perfect tense and its use. This type of sentences are frequently asked in all types of exams. Either they are board exams or competitive exam. Understand the concept of this sentence of past perfect tense. Past perfect tense is used for an action completed at some point in the past before another action commenced or completed. For example, this is the timeline. इसमें दो एक्शन होंगे. एक एक्शन पास्ट में यहां शुरू हुआ, और अगर ये एक्शन किसी दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले खत्म हो गया, फिनिश हो गया, तो हम उसके लिए जो पहले खत्म हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो बाद में फिनिश हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स एंड टेस्ट्स. लेट अस टेक एन एग्जांपल. द एक्शन विच इज फिनिश्ड prior is known as prior action, and another action which was finished later is known as later action. First of all, we have to identify the action, which one is prior action and which one is later action. And for prior action we use past perfect tense, means had plus V3.
and for later action we use simple past tense means V2. It doesn't matter that which action is written at initial position and which action is written at the final position. It doesn't matter. Both the sentences are joined with two conjunctions, either before or after. If we use this conjunction before, then the prior action is written at the initial position of the sentence. And if we use this conjunction after, then we use past perfect tense means prior action at the final position of the sentence. Let us try to understand this concept of two actions with a sentence. The criminal had run away. Who had run away? The criminal. The criminal had run away before the police came. Here simple past tense V2. Here had run away past perfect tense. Had plus V3. It means which action is the prior action? This action. Running away of by the criminal is the prior action, and coming of police is the later action. So we shall use past perfect tense for the prior action and simple past tense for the later action. Now, the students entered the classroom after the bell had rung. The students entered the classroom, simple past tense, ये subject है हमारा, ये V2. The students entered the classroom after means ये जो एक्शन हुआ ये बाद में हुआ, तो ये लेटर एक्शन हुआ. आफ्टर द बेल हैड रंग, बेल सब्जेक्ट और हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस. यहां पर यूजुअली आपको यहां ब्लैंक मिलता है या फिर यहां ब्लैंक मिलता है. ऊपर वाले सेंटेंस में आपको यहां ब्लैंक मिलेगा और यहां ब्लैंक मिलेगा. आप एक चीज ध्यान में रखिए, अगर ये दोनों सेंटेंसेस बिफोर से जॉइंड हैं तो आपको प्रायर एक्शन इससे पहले मिलेगा, यहां लेटर एक्शन मिलेगा. यहां सिंपल पास्ट यूज कर दीजिए, यहां पास्ट परफेक्ट. यदि ये दोनों सेंटेंसेस आफ्टर से जॉइंड हैं तो आपको प्रायर एक्शन यहां मिलेगा, ऊपर की बजाय इसके विपरीत यहां पर मिलेगा. तो यहां आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है और यहां लेटर एक्शन मिलेगा जिसमें आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट for all the examinations. Third is we use past perfect tense for past desires or for a past desire which remained unfulfilled. जो पूरी नहीं हुई, ऐसी डिजायर जो हमने पास्ट में सोची थी, पास्ट में की थी, but remained unfulfilled. For example, I wish I had met him earlier. मेरी इच्छा थी, मान लीजिए हम किसी अपने जीवन में बहुत ही की पर्सन से, किसी रिनाउंड पर्सन से मिले और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मन करता है कि काश मैं इनसे पहले मिला होता. मीन्स मेरी इच्छा है कि मैं इनसे पहले मिल गया होता तो बहुत अच्छा होता. बट दिस डिजायर रिमेन्ड अनफुलफिल्ड. लेकिन कोई नहीं, किसी अच्छे व्यक्ति से हम जब भी मिलें अच्छा ही होता है. Next example is if only I had worked sincerely. मान लो किसी के काम का कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, किसी एक्शन का. क्यों नहीं आया उसे खुद भी पता है क्यों नहीं आया. उसे पता है कि उसने सिंसियरली काम नहीं किया. तब वो मन ही मन सोचता है if only I had worked sincerely. अगर मैं सिंसियरली मैंने काम किया होता तो परिणाम कुछ और होता. नेक्स्ट and the last, third conditional sentence. There are 4 types of conditional sentences जिसके लिए हम एक अलग क्लास में, एक अलग वीडियो में चर्चा भी करेंगे. लेकिन आप यहां केवल ये देखिए कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा एक्शन होता है that is impossible to happen. पास्ट के बारे में कोई ऐसी कंडीशन लगा दें हम जो
इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल टू हैपन हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर कोई मान लीजिए किसी का कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, कोई कंपटीशन एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन क्वालिफाई ना कर पाने के बाद वो सोचता है इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, यदि मैंने बहुत अच्छी मेहनत की होती, यदि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा होता, आई वुड हैव क्वालिफाइड, तो मैं निश्चित रूप से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर देता। अगर आपको यहां हैड प्लस V3 मिले, कंडीशनल सेंटेंस का पता लगेगा इफ से कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, और यहां आपको अगर हैड प्लस V3 मिले तो यहां आपको वुड हैव प्लस V3 लिख देना है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में सेंटेंस को इस तरीके से पूछा जाता है, यहां पर ब्लैंक दे दिया जाएगा आपको इस प्रकार से, यहां ब्रैकेट में स्टडी लिखा मिलेगा और यहां वुड हैव क्वालिफाइड। यदि आपको यहां वुड हैव प्लस V3 मिले तो यहां हैड प्लस V3 आएगा, हैड स्टडीड। ऐसे सेंटेंसेस को हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। इस प्रकार से हमने सीखा यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। टुडे we are going to understand where do we use past perfect continuous tense. First of all, let us discuss about the structure of past perfect continuous tense. As we have discussed that we use had as a helping verb to represent, to express an action of past perfect tense. So, we use had plus been to express a past perfect continuous action. Subject had been, we use had been for both the subjects either singular or plural. Plus V4. V4 means V1 plus ing plus object with a time phrase or an adverb of time followed by since or for as the conjunction. Now, if we have to change it into negative, use not after the helping verb and before been, had not been. If you want to change it into interrogative, change the position, interchange the position of had and subject and put a mark of interrogation in place of full stop at the end of the sentence. Now, let us see where do we use past perfect continuous tense. There are only two types of situations for which we use past perfect continuous tense. The first one is we use past perfect continuous tense for an action that began before a definite moment in the past. यहां हमें यह समझना पड़ेगा, दिस इज द टाइमलाइन। अगर कोई एक्शन पास्ट में किसी मोमेंट पे शुरू हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये पास्ट का पीरियड है, एक्शन यहां से शुरू हुआ एंड एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जिसकी हम बात करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम की, इससे पहले एक्शन शुरू हो चुका था एंड एट दैट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस, एक्शन वॉज इन कंटिन्यूटी. In continuity, the action had continued up to that moment. या तो उस मोमेंट तक वो कंटिन्यू रहा है या फिर that action is still in progress. एक्शन पास्ट में शुरू हुआ किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ मोमेंट से पहले, उस पॉइंट पर रिसेंटली फिनिश हुआ या स्टिल इन प्रोग्रेस में था, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. लेट अस टेक टू एग्जांपल्स to understand this timeline, this action or time of this action. First of all, she had been studying for 2 hours. She had been studying for 2 hours means studying का जो action था वो past में शुरू हुआ when I reached there. This is that certain point of time जहां से हम उस action को compare करेंगे
जब मैं उसके घर पहुंचा, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तो वो उससे भी 2 घंटे पहले से पढ़ रही थी। उसका पढ़ने का जो एक्शन था वो जारी था, जब मैं गया तब भी जारी था। इट मीन्स वी यूज फॉर सच एक्शंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। माय फ्रेंड राजू हैड बीन वर्किंग विद SBI। मेरा दोस्त राजू SBI के साथ काम कर रहा था एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या है या कितने दिन से काम कर रहा था? फॉर 5 years। एंड सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इज बिफोर ही वॉज सिलेक्टेड एज एन IAS ऑफिसर। उसके IAS ऑफिसर सेलेक्ट होने से पहले SBI के साथ 5 वर्षों से काम कर रहा था। एक्शन ऑफ वर्किंग विद SBI was in progress for last 5 years before a certain point of time, means before his selection as an IAS officer. In this way, we use past perfect continuous tense to express this action. Next is, we use past perfect continuous tense to describe a repeated action. एक एक्शन जो पास्ट में बार बार रिपीट हो रहा था, उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना हैड बीन ट्राइंग टू हाइड द ट्रूथ ऑफ कोरोना वायरस फॉर मैनी डेज। चाइना रिपीटेडली हैड बीन ट्राइंग टू हाइड द ट्रूथ, सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा था, ऑफ कोरोना वायरस से रिलेटेड, फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। व्हेन द USA इंटरवेंड, जब USA ने बीच में दखल दी, हस्तक्षेप किया, उससे पहले चाइना रिपीटेडली इस सच्चाई को छिपाने का प्रयास बार बार कई दिन से कर रहा था। चाइना हैड बीन ट्राइंग टू हाइड द ट्रूथ ऑफ coronavirus for many days when the USA intervened. Next example is, the scientists of China had been trying to control coronavirus. अब वो सच्चाई को क्यों छिपा रहे थे? Because the scientists of China had been trying to control coronavirus for a month. करीब 1 महीने से कोरोना वायरस को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था। कब कर रहा था? When the WHO declared it a pandemic, जब WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित किया। ये न्यूज में बहुत ही हाईलाइटेड रहा है, ये वाली न्यूज बहुत हाईलाइट हुई है और इसीलिए इसको हम आज के परिदृश्य में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। मैंने ये रिसेंट एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको रिसेंट एग्जांपल से रिलेट करके आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट को भली भांति और अच्छे से समझ सकें और अपनी इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर में आप इसे डेली यूज में यूज कर सकें। ये एक उस एक्शन से पहले पास्ट में किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम या किसी एक्शन से पहले से कई समय से पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से इन प्रोग्रेस में होता है, इसलिए हम इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अभी तक हमने सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के यूजेस पर डिटेल से डिस्कस किया। अब हम अगले वीडियो में एक एक्सरसाइज सोल्व करेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन पास्ट टेंस, मीन्स all the 4 types of past tense. Thank you very much.